रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा, दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइपास। वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से आपके लिए खास 2 खबरें लेकर आए हैं। पहली क्राइम की और दूसरी कल्चर की यानी सपना चौधरी की। लुधियाना के थाना डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने वाहन चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आइए चलते हैं लुधियाना के सिविल लाइंस के एसीपी सरताज सिंह चाहल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में और देखते हैं कि क्या खुलासा करते हैं। लुधियाना से विकास भामरी, वॉइस ऑफ एशियंस। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 27 ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਸਨੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ 3 ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 5 ਵਿੱਚ 420 ਦਾ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਜੀਤਵਾਲ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 420 ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 5 ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੋਰੀ ਤੇ ਇਲੀਗਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਲੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 2 ਵੀਲਰਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਇਹ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਸੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ? ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਸਟ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਾਸਟ 1 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 8 ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਰਖਬਾਗ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 4 ਵਹੀਕਲ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ। ਉਹ ਹਲੇ ਫਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਟਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੌਜੀਕਲ ਕੰਕਲੂਜਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਪਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਹਾਊਐਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਪ੍ਰੂਫ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੁਵਨਾਈਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 4 ਵਹੀਕਲ 2 ਵੀਲਰਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਹੈ, ਸਕੂਟੀ ਤੇ 3 ਸਪਲੈਂਡਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਸ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ। 4 ਵਹੀਕਲ ਨੇ ਰਖਵਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਐਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਡਰ ਏਜ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਮਾਂਡ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਰਦੇ ਕੀ ਸਰ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ वेरिफिकेशन होनी बाकी है। और अब बात करते हैं कल्चर की। लुधियाना के फिरोजपुर रोड पर स्थित पंजाबी भवन में हरियाणवी डांसर और बिग बॉस फेम सपना चौधरी ने अपने गीतों पर लगाए ठुमके, लेकिन अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले उसने पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए भी 5 मिनट का मौन व्रत रखा। विकास भामरी, वॉइस ऑफ एशियंस, लुधियाना। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खास 2 खबरें आपको? हमें जरूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले अपडेट सिर्फ आपको ही मिल सके। मेरा कोई मोटिव नहीं था, मैं सच बता रही हूँ, आज का प्रोग्राम मुझे नहीं करना था।
लेकिन हम आर्टिस्ट नहीं चाहते कि किसी भी ऑर्गेनाइजर का हमारी वजह से नुकसान हो जाए है तो कुछ ना कुछ करके ही जाएंगे। आज जितना भी फंड इस प्रोग्राम से इकट्ठा होगा वो सीआरपीएफ के जितने भी जवान शहीद हुए हैं सीधा उनके अकाउंट में जाएगा। और हम सैल्यूट करते हैं उन लोगों को। कई लोगों ने कहा कि इसको प्रोग्राम की पड़ी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्यों ना प्रोग्राम करूं जब मेरे हिंदुस्तान के आर्मी ने, हिंदुस्तान के जवानों ने मुझे ऑर्डर प्राप्त करा रखा है कि मैं खुल के अपना काम कर सकती हूँ और मैं खुल के अपना काम करूंगी हमेशा। और सोते समय सिर्फ दो लोगों को याद करती हूँ, एक है हमारा जवान और दूसरा है हमारे हिंदुस्तान का किसान। इनके अलावा किसी के आगे कभी भी नहीं झुकना चाहिए क्योंकि किसी ने हमें कुछ नहीं दे रखा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे यहाँ की पुलिस का, पंजाब पुलिस का। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और आप सभी का यहाँ आने के लिए भी शुक्रिया। और बस और कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ 2 मिनट का मौन उन सेनानियों के लिए जिन्होंने हमें जिंदा रखा। विरोध करती हूँ, पक्का इस बात का क्योंकि जो कुछ भी हुआ है बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। मान लीजिए अभी 44 शहीद हुए हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। कितनी माएँ अपने लाल देती रहेगी और कब तक? इस मुद्दे पे बिल्कुल पड़ताल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और अच्छे तरीके से इसका बदला लिया जाना चाहिए। मैं बिल्कुल साथ हूँ इस बात। आप जैसे लुधियाना में आए, आपको स्टेज शो भी करने का कुछ इरादा नहीं था क्योंकि लोगों का गुस्सा था थोड़ा सा, इसलिए आपको करना पड़ा। तो क्या संदेश है? बस यही संदेश है कि अभी मन नहीं लगा, अच्छे से नहीं हो पाया, 100% नहीं दे पाई। पहला शो मेरी जिंदगी में ऐसा है शायद जिसमें मैंने अपना 100% नहीं दिया, लेकिन हाँ, हम दोबारा ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ पे शो और अच्छे से करके जाएंगे। अभी आपने शहीदों को भी याद किया स्टेज पे, बहुत कम देखा जाता है कि ऐसा। नहीं सर, आज ये मौका और वारदात ऐसी है कि लोगों को दिखाई देने लगा, वरना मैं जिस स्टेज पे गई हूँ मैंने अपने जवान और किसान को हमेशा याद किया और ऑफकोर्स करना चाहिए। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज बनता है। एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमें अपनी इंडियन आर्मी पे घमंड होना चाहिए, क्योंकि इंडियन आर्मी जो हमारी इंडियन आर्मी है, ऐसी सेना लोग फॉरेनर सोचते हैं कि अगर हमारे पास हिंदुस्तान की सेना होती तो हम ये कर देते, वो कर देते, लेकिन हमें घमंड होना चाहिए कि इंडियन आर्मी हमारे पास। सरकार के रोल को कैसे देते सरकार अभी तो देखिए, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हुआ है। हाँ, देख रही हूँ मैं न्यूज बैक टू बैक देखे जा रही हूँ। मोदी जी ने धारा 370 हटा दी है। बाकी अभी मैं बस यही कहूंगी, सबसे अनुरोध है कि देखिए इस चीज को लेके पॉलिटिक्स मत कीजिए। उन लोगों को देखिए जिन्होंने अपने लाल खो दिए, जिन्होंने अपने भाई खो दिए, जिन्होंने अपने बेटे खो दिए। हमारे राजस्थान के शहीद है जिनका अभी बेटा हुआ था, मतलब उन्होंने ढंग से शायद अपने बच्चे को खिलाया तक नहीं।
आप उन लोगों को देखिए जिन्होंने कुछ ना कुछ खो दिया है। अगर इस चीज पे भी आप राजनीति खेलेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों से बेवकूफ और आप लोगों से गंदा इंसान हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। अच्छा, थोड़ा सा चर्चा है कांग्रेस में जाने का। में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स से मैं हाथ जोड़ती हूँ और मुझे कहीं नहीं जाना। मैं अपने काम को लेकर बहुत खुश हूँ और हमेशा उन लोगों का शुक्रिया करूंगी जिन्होंने मुझे यहाँ बैठाया, ये ओहदा दिया। इसके अलावा मैं किसी आप प्रियंका गांधी से भी मिल के आए मैम? हाँ जी, मिलने में कुछ नहीं जाता। मिलने में क्या जाता है? आप मुझसे मिल रहे हैं, अभी कुछ जा रहा है आपका मिलने में किसी का कुछ नहीं जाता। जो इंसान जिन्होंने बुलाया हमें जाना चाहिए, उन्होंने मान सम्मान के साथ बुलाया, मान सम्मान के साथ मिलाए। हाँ, वो हमारी बात है। कुछ उन्होंने मांगा, हमने मना किया। कुछ हमने मांगा, उन्होंने मना किया। वो हमारे आपस की बात है। लेकिन ऑफकोर्स मैं पॉलिटिक्स ना तो ज्वाइन कर रही हूँ ना कभी करूँगी। ठीक है। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, फिलहाल बहुत ज्यादा खुश हूँ। कैसा लग रहा है लुधियाने? पब्लिक बहुत ज्यादा अच्छी थी। बस थोड़ी सी नाराज होके गई है मुझसे। लेकिन कोई बात नहीं, मौका और दस्तूर देखी जाती है, नजाकत देखी जाती है और कोई बात नहीं। अगली बार आएंगे तो उनकी तमन्नाएं पूरी करेंगे। हम कर नहीं सकते क्योंकि वो हमारी कंपनी का है। बाकी गाना बहुत अच्छा, तालीम भी हमारा है। क्योंकि अभी ना तो हमारा फर्ज बनता है और एक इंसानियत के नाते ना आप लोगों का फर्ज बनता है।
नहीं आनी चाहिए। कह दिया कि यूं तो सभी को आशिक चाहिए आशिकी के लिए, लेकिन हिंदुस्तान से बड़ा कोई सनम नहीं होता। कि यूं तो सभी को आशिक चाहिए आशिकी के लिए, लेकिन हिंदुस्तान से बड़ा कोई सनम नहीं होता। और जाने कितनी लाशें निकलती होंगी कैसे कैसे कफनों में, लेकिन उस तिरंगे से बड़ा कोई कफन नहीं होता। इसका कोई गोरख धंधा पड़ दे, बिना आजादी का तू चढ़ दे, इसका कोई गोरख धंधा पड़ दे, बिना आजादी का तू चढ़ दे, मेरे जैसा कौन चढ़ दे, मेरे जैसा कौन चढ़ दे, पूत जहान में भगत सिंह गलती ऑर्केस्ट्रा पे नहीं गाते क्योंकि रावणी है, शायद नहीं चलता रह जाओ। जब एक सेनानी शहीद होता है, अभी मैं बात गा रही थी, हद है। कि जब एक सेनानी शहीद होता से के बाद बोलते हैं कि आते आते बिग लैंडर फ्लाइट की 2 बोतल ले आना, सिग्नेचर की 2 बोतल ले आना। इनकी दुनिया यहीं तक सीमित रह जाती है, इनकी दुनिया वहां तक सीमित रह जाती है और हम खुद के जीते। ताली मार के जोरदार ताली मार के रूखी त्वचा यानी अनहेल्दी त्वचा,
दीजिए अपनी स्किन को हाइड्रेशन का पोषण विद रोजा बॉडी लोशंस, सॉफ्ट मखमली एहसास, रोजा लाइफ पास।